Physical quantity is the property of an object that can be quantified. For instance, the physical quantities are the length of rod or mass of body. Measurement is the act of comparing physical quantity with its SI unit. There are two kinds of physical quantities: scalar quantities and vector quantities. Scalar quantities are quantities that have magnitude only, that means they are independent of direction. Example: time, temperature, mass, density, etc. And vector quantities are the quantities that have your magnitude and direction. Displacement, velocity, and moment, force, etc. are the vector quantities. Now, physical quantities. Physical quantities is quantity which can be measured, for example, length, mass, time, temperature, current, etc. Physical quantity is always measured of natural non-living object. Physical quantities have numerical magnitude and unit. For example, if the length of a student is 104 centimeter, then 104 is the numerical magnitude and centimeter is the unit of measurement. Now let us start the topic in details. How are you, students? Today in this class we will discuss about physical quantities and their measurement. What is mass, what is volume, what is equal mass, what is density, etc. we will discuss in this class. Students, first understand the term what is mass. The mass of the quantity is the matter contained in the body. Here there are two terms. First one is mass and second one is your weight. And what is the difference between mass and weight? तो mass और weight में क्या difference होता है इसको आपको समझना है, and this is very important. तो हम यहाँ पर जानते हैं कि mass के लिए हम लिख सकते हैं जहाँ पर m is equal to your mass and it is constant, it is fixed in whole universe. आप इस पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाइए, किसी भी कॉर्नर पे, the mass is always fixed. ये आपका फिक्स्ड होता है, दिस इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है, एंड W दैट मींस दिस इज वेट, दिस इज वेट. ये जो होता है आपका, दिस इज वेरिएबल, ये वैरी करता है एंड इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी. जैसे मून का ग्रेविटी कुछ और है, अर्थ का ग्रेविटी कुछ और है, तो यहां पर हम W इक्वल्स टू लिख सकते हैं mg एंड दिस इज नॉट फिक्स्ड, इट डिपेंड्स. ये किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट. उस प्लैनेट का, जिस प्लैनेट पे हम वेट को मेजर करने जा रहे हैं, उस प्लैनेट पे उसका ग्रेविटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका वेट निकालेंगे. और ये g जो है वो ग्रेविटी है, बट दिस इज योर मास. तो ये दो टर्म है जिसको कि हम लोग को इंपॉर्टेंट है समझना, और इस पे हम लोग आगे भी बात करेंगे. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज डेंसिटी. डेंसिटी किसको कहते हैं? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. मास बाय वॉल्यूम, इसको हम लोग केजी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और केजी पर मीटर क्यूब, और ग्राम, यू कैन राइट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं. डेंसिटी हमारे पास अलग अलग टर्म्स में भी डेंसिटी के बारे में बात करते हैं. जैसे चार्ज डेंसिटी होता है, यहाँ पर हम लोग मास के लिए बात कर रहे हैं. आपके क्लास में चार्ज वगैरह के बारे में भी नहीं पढ़ना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्योरली डेंसिटी जब भी बोलेंगे तो ये मास बाय वॉल्यूम हम लोग बोलेंगे. आगे हम लोग देखेंगे कि डेंसिटी के लिए मास बाय एरिया भी लिख सकते हैं, मास बाय लेंथ भी लिख सकते हैं. वो लीनियर डेंसिटी हो जाता है. जैसे हम अगर लिख रहे हैं दिस इज मास बाय लेंथ, तो इसको हम कहेंगे लीनियर डेंसिटी. दिस इज लीनियर डेंसिटी. अगर हम लिख रहे हैं मास बाय एरिया, इट मीन्स दिस इज एरियल डेंसिटी. Students, there are two types of physical quantities.
Here first one is your fundamental or basic physical quantities. This is basic or fundamental physical quantities, and second one is derived physical quantities. Here basic fundamental quantities, for example your length, this is length, time, mass, temperature, amount of substance, etc. There are 7 basic और physical quantities. इसको हम लोग आगे देखेंगे. Here लेंथ और टाइम को हम कंबाइन करके दूसरा क्वांटिटीज मिला सकते हैं, बना सकते हैं. लेंथ को फॉर्म करके हम डिराइव बना सकते हैं, दैट इज एरिया. ये आपके पास एरिया हो गया. लेंथ बाय टाइम, लेंथ और इसमें क्या हो गया, ये लेंथ इनटू ये क्या है, ब्रेथ. लेंथ इनटू ब्रेथ. ब्रेथ भी एक तरह का लेंथ ही है, तो L इनटू बी. ये भी मीटर में ही मेजर करेंगे और इसको भी मीटर में ही मेजर करेंगे, या ये सेंटीमीटर या भी ये भी सेंटीमीटर. तो हम देखेंगे कि लेंथ इनटू लेंथ इज एरिया. ये एक दूसरा फिजिकल क्वांटिटी हो गया जो कि डिराइव्ड है. यहां लेंथ को ही यूज करके हम क्या किए, डिराइव किए, दैट इज एरिया. तो ये आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है. लेंथ बाय टाइम, हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड, यू नो. तो हमारे पास स्पीड जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है. डिस्टेंस लेंथ में ही मेजर करेंगे, दैट मींस लेंथ बाय टाइम से डिराइव्ड क्वांटिटी हुआ क्या आपके पास, ये हुआ स्पीड. फिर स्पीड बाय टाइम करेंगे, यू विल गेट एक्सीलरेशन. तो हम देख रहे हैं कि जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है, दैट कैन बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. देयर आर 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज like length, time, mass, temperature, amount of substance, luminous intensity, etc. जिसको brightness, बल्ब के brightness वगैरह को मेजर करने के लिए वो यूज करते हैं. और सेकेंड हैंड यहां पर देख रहे हैं कि दिस इज योर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हमने यहां पर देखा जो इसी से डिराइव हो रहे हैं. Here physical quantities. तो physical quantities are your, हमने देखा कि there are 2 kinds of physical quantities, and first one is your fundamental and second one is derived. तो कुछ बेसिक ये जो एग्जांपल लेते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज का, जैसे आपके पास मान लिया है फोर्स, फॉर एग्जांपल दिस इज फोर्स. तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज मास इनटू एक्सीलरेशन. ये मास इनटू एक्सीलरेशन जो है वो फोर्स है. तो हम इससे इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, इसके यूनिट को भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास मास को हम मेजर करते हैं केजी में, और एक्सीलरेशन के लिए जो है ये आपका एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम. ये वेलोसिटी बाय टाइम है, और वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, तो वेलोसिटी जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. That means this is length by time. That means this is meter per second. और इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड, दैट मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं केजी, और इसके लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स, या इसको हम शॉर्ट में न्यूटन भी लिख सकते हैं. तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज का आइडिया है बेसिक, तो you can derive your other physical quantities in terms of the basic physical quantities, and you can measure it in terms of your basic units. तो इससे हम लिख सकते हैं, ये आपके पास फोर्स का यूनिट आ गया. अब हम फोर्स के बाद देखते हैं प्रेशर. फॉर एग्जांपल दिस इज प्रेशर. प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स बाय एरिया. फोर्स बाय एरिया. तो फोर्स के लिए आपके पास आ गया न्यूटन, ये न्यूटन, और एरिया के लिए क्या आएगा, तो मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर, एरिया लेंथ इनटू लेंथ,
length into breadth, the meter square. That means you can write Newton meter minus 2. This is the unit of pressure.